Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. In today's Java session, we are going to discuss very important topic, that is autoboxing and unboxing. Okay, so in this we'll be seeing how the primitive type gets automatically converted into its wrapper object and vice versa. A wrapper object can automatically get converted into primitive. Getting? Now let's start with this concept, like what is autoboxing, unboxing, then different situations when autoboxing takes place, when unboxing takes place. Okay, then the demerits, like does it really benefit? All the things one by one we are going to discuss. Now, before starting with what is autoboxing, first thing you should know that when we took long back the topic primitive data types in Java, okay, that time I hope you should remember that Java is having 8 primitive data types. They are scalar values. They are never objects. They are stored on stack. Is it? So primitive data types like we have byte, short, int, long, float, double, char, and boolean. So these 8 primitive data types are never objects. They are scalar value. Okay, they are elementary type. They are single valued. Okay, and because of that only Java cannot be called as a pure object oriented, because in Java primitives are primitives only. They are not object. But Java has provided for all 8 primitive data types corresponding 8 wrapper classes. Okay, they are in the land package. Okay, every primitive type will have a corresponding wrapper class. And when to use that wrapper class? When you want to represent that primitive as a object. When you want the same primitive to be treated as an object, then we put that primitive in that, we encapsulate that primitive in the corresponding wrapper class object. Getting? So I hope that the first basic thing you know that every primitive will have a corresponding wrapper class. Int will have its integer wrapper class, float will have its float wrapper class, char will have its character wrapper class. Okay. Now first we'll discuss about what is autoboxing. So autoboxing means compiler will automatically convert a primitive type into its corresponding wrapper object. And unboxing means whatever is there in that wrapper object, the primitive which is stored in it, you are extracting that primitive which is kept in that object. That is unboxing technique. Getting? So previously, this is not the initial feature, means it's not coming from Java 1.0. It has been introduced in Java 5. Before that, wrapper classes were there, wrapper objects were created. Everything was there from 1.0. But concept of autoboxing is introduced in Java 5. Okay? So autoboxing, what I said, automatically converting the primitive. The compiler does the conversion. Okay? Compiler generates the code. It is just a syntactic sugar. Compiler is generating that code. But for us, it is so easy. Automatically converting the primitive to its corresponding wrapper class object. And vice versa. If you have a wrapper class object, it is extracting the primitive which is stored in that object and giving you that primitive. Getting? So before Java 5, when this concept was not there. So if you need any integer wrapper class object, this is your integer class, and you want to create an object of that integer class, then you were supposed to explicitly create that object using new operator or using some factory method, static methods of that class. Getting? Now I'm showing you for integer, it is same applicable for all wrapper objects, wrapper classes. So there is one static method of integer class called value of. Okay, and to that you'll pass the primitive. Now this is integer class.
and you want a primitive integer to get converted into integer object, I'll pass 42 here. Getting? This we were supposed to do this way, or you write new integer and then pass to the constructor 42. Now here what was happening? Integer dot value of 42. It was creating one object of integer class. Inside that integer class object, it was encapsulating that 42. Means obviously that integer class object might be having some private data member in that 42 is getting stored. And this is happening on heap. Okay? And then the reference of that object is getting stored in that I, where I is the object, the reference variable, which is on the stack. Understanding? So previously, when I was supposed to create an integer object and I want to encapsulate a primitive in that integer object, I was supposed to do like this: integer I equal to integer dot value of 42. Then what was that value of doing? Creating an integer object. In that primitive 42 was getting stored in that object, and the reference of that object was stored in this I variable, which is a reference variable. Agreed? And suppose you want that primitive which is stored in that object, you want to extract that primitive, then you were supposed to call the instance method of that object. Now I is an integer object, then we were supposed to call its instance method dot int value. Getting? When you want to extract the primitive which is stored in that object, we have to call this instance method. And when you want to store the primitive in the object, then you have to call the static method, integer dot value of. Give the primitive stored in an object. It creates an object. That primitive is stored in that object. Then it returns the reference of that object, and that you were collecting in I object, I variable, which is a reference variable. And reverse way, if you want the primitive which is kept in that object, you want to extract that, then you have to call this instance method of that integer wrapper class. Int value is the instance method of that integer wrapper class. And that, as it is an instance method, who will invoke it? Object I dot. I is a object of integer. Now what it will return? Whatever is primitive stored in it, that is 42, it will give it here. But both things we were supposed to do it manually before Java 5. Means we were supposed to call integer dot value of, pass primitive, then that value of was creating an object, storing 42 in that object and giving you the reference of that object. And if you want the primitive in that object, then we were supposed to call the instance method dot int value, which was returning the integer which is kept in that object, primitive value. It was removing that integer from that object and giving you the primitive value. Getting? Now this both things are happening automatic from Java 5. Means from Java 5, you don't have to explicitly do that work. What is they have given? You just have to create an integer variable, okay, and you directly assign the primitive to it. Getting? You're creating an object of integer class. I capital, you should know that in Java, any class name starts with capital. So integer I equal to 42. Getting? Now this is just a syntactic sugar. Means what? It is just a ease provided to you that you can directly assign a primitive to an object. In reality, this 42 is not at all stored in I. Compiler is just replacing here the bytecode which is to be generated. That code is replaced here. It will remove this 42 and it is just going to replace it with integer dot value of, to which work we were doing manually previously. It is just doing it for you. Compiler is just replacing this 42 with this line. Which line? Integer dot value of 42. But we don't have to do it. They have given so ease to us that directly assign a primitive to an integer object. And same way,
when you want the primitive stored in it, you can directly assign that object to a primitive. Actually, I is the object, and you are assigning that object directly to primitive. So we have a doubt, no? Normally, if the concepts are clear between primitive and non-primitive, that is object and primitive. So we will have a doubt. How can I assign an object to a primitive? It is just a is provided to you. I said, no, it is just a syntactic sugar. It is just going to replace this line. Compiler is just going to remove this, and in place of this, what it is going to put? I dot int value. Understanding? And what is this int value? It is an instance method of that integer wrapper class. ये integer wrapper class की ये instance method है. तो I ये integer का object है, तो वो method invoke होगा. इसके अंदर जो रखा हुआ primitive है, वो बाहर निकलेगा, जो x में आके store होगा. I hope the basic idea you are getting. So what is autoboxing? Automatically converting the primitive to its corresponding wrapper object. And what is unboxing? By automatically extracting the primitive in that object. Whatever is stored in that object, primitive, that value you are extracting. That is called unboxing. Okay, so quickly we'll see the definition so that many other things are associated with this topic. All one by one we will discuss. Okay, so autoboxing means the automatic conversion made by the Java compiler between a primitive type and its corresponding wrapper class. Getting? So Java compiler is automatically converting the primitive to its corresponding wrapper object. I will just write integer I equal to 42. By seeing the syntax, we feel doubtful that 42 is a primitive, I is an integer object, I is a reference type variable because it's an integer class object. As it is an integer class object, how can I assign a primitive to it? So don't worry. Actually, primitive is not getting assigned. Compiler is just replacing that 42 with integer dot value of 42, which was done traditionally before this autoboxing concept. So 42 gets saved in that object. It gets wrapped in that wrapper object, and you get the reference of an object only. Getting? And what is unboxing? The reverse. If you have an object, wrapper object, extracting the primitive which is kept in it, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रिमिटिव रखा है वो बाहर वापस निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अनबॉक्सिंग. सो इट इज द रिवर्स, ऑटोमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम अ रैपर ऑब्जेक्ट बैक टू प्रिमिटिव. सो डायरेक्टली इफ आई राइट इंट primitive int x equal to object I. So please remember, object I is not getting stored in primitive x. Compiler is just going to call over there I dot int value, which is a instance method, and that instance method will return whatever is the primitive stored in that object. It will remove that primitive. Remove means it's not going to delete it from there. It just returns whatever primitive is stored in it, and that primitive you get. But is it not so easy for us? The work is done. You don't have to explicitly call that static method dot int value. You don't have to explicitly call object dot value of an object dot int value. Our work becomes easy. Getting? Okay, so as I said, introduced in Java 5. I hope the definition part is clear. So automatic conversion of primitive to wrapper object done by the compiler is autoboxing, and extracting the primitive from that object. Okay, by default, whatever is kept in that object, you're extracting it automatically. You don't have to do any work. That is unboxing work. Okay. Now, as I said, this feature was introduced in Java 5. Previously, I told you what was done. That boilerplate code you were supposed to write. Boilerplate codes means all the legacy code, traditional codes, which are to be used continuous, will not get removed. Those are the codes which are from years and years. They still are in use. We have to use it. But now what the modern Java says, all these traditional codes which are the standard codes,
which programmer has to write. They are saying, we are taking that work from you. You don't worry about writing that all legacy code. We will automatically generate for you. Getting? So Java 5 is trying to remove that manual conversion, right? It eliminates the need for manual conversion of primitive to object and object to primitive. See here, I'll tell you. Before Java 5, the manual boxing concept was there. What was to be done? See, integer dot value of 42. Or you can do this way also, new integer, and to the constructor you pass 42. You explicitly call new operator and use new operator and then create a instance of a integer class, and then to its constructor pass 42. What is this static method going to do? Value of is a static method of that wrapper class. It will take primitive. Internally it will create an object on heap. पहले heap पे एक object बनाएगा integer class का, उसके अंदर ये 42 encapsulate करेगा एंड फिर वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें देगा जो x में आ जाएगा. ठीक है. एंड अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रिमिटिव रखा है वो प्रिमिटिव मुझे चाहिए, तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ता था, इंटीजर y इक्वल टू, एंड देन आई वाज सपोज टू कॉल दैट इंस्टेंस मेथड इंट वैल्यू. उसकी जो भी इंस्टेंस मेथड है इंट वैल्यू, जैसे फ्लोट रैपर क्लास रहेगा तो फ्लोट वैल्यू, डबल रैपर क्लास रहेगा तो डबल वैल्यू. गेटिंग? और ये स्टैटिक मेथड हर रैपर क्लास को दी हुई है और ये इंस्टेंस मेथड भी हर रैपर क्लास को है. तो दीज टू लाइंस वी वर सपोज टू डू previously, converting the primitive to object and then store it, and extracting that primitive from the object and storing in a primitive. Now these two lines, how they have become easy for us in the modern Java, Java 5 and onwards. The concept of autoboxing, unboxing has come. So what is the facility? Directly you assign a primitive to object like this, integer x equal to 42. Now when you are assigning a primitive to an object, actually that 42 is not getting stored in x. Internally, in place of 42, this code is getting replaced by the Java compiler, and then that code is converted to bytecode. Means ultimately you are going to get the same thing which was happening traditionally, but these traditional codes that are called as boilerplate codes, they are saying, why you are wasting time in writing those all boilerplate code? Java compiler will write the code for you. So Java compiler is actually replacing this 42 with this thing, integer dot value of 42. Means in short, primitive is getting converted into object. Automatic. Okay? And same way, if you have an object and you want a primitive from it, you just simply assign an object to a primitive. Can you see? Int y equal to x. Now in this case, they both are of different type. Y is a primitive and x is an object. But please remember, the object is not getting assigned. Compiler is actually replacing in place of this line, x dot int value. इस जगह पे कंपाइलर क्या रिप्लेस करेगा? x dot int value. और फिर वो जो int value मेथड है उस x ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट में रखी हुई जो प्रिमिटिव है वो निकालेगा और वो y को देगा. उसको हम अनबॉक्सिंग कहते हैं. That is extracting, automatically extracting the primitive from the object is unboxing, and automatically storing a primitive within an object is called as autoboxing. Okay? Okay, I hope the basic idea you got what was traditionally done and what facility we are getting from Java 5 onwards. Okay? Pictorially, just for your imagination, just an imagination concept, like you can imagine in that way, that you have a primitive value 42. It's a primitive value, int value. It is an integer type value, and this primitive value is assumed on the stack. And then when the autoboxing is happening, what is that integer dot value of static method doing? It is first creating an object of that integer wrapper class. ये जो integer wrapper class है, इसका एक object बनाएगा. किस पे? Heap पे. And फिर वो object का कुछ constructor call होगा
जिसके थ्रू ये प्रिमिटिव उसको पास होगा। तो ये प्रिमिटिव उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्राइवेट डेटा में जाके स्टोर होते रहेगा। दिस इज व्हाट। सो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड and then within that object that primitive is stored. Getting? So the int value 42 is boxed into an integer object. Now this object is an integer class object stored on the heap. Getting? And same way vice versa, if you have an integer object and you want that primitive, again the same thing, unboxing technique you can say. So on the heap we have an integer object. हिप पे एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसके अंदर वो प्रिमिटिव है। तो अनबॉक्सिंग क्या करेगा, बॉक्स ओपन कर रहा है और उसके अंदर जो रखा हुआ प्रिमिटिव है वो बाहर निकाल रहा है। इन शॉर्ट, इट इज रिमूविंग द प्रिमिटिव विच इज केप्ट इन दैट ऑब्जेक्ट एंड गिविंग इट टू यू, विच यू आर स्टोरिंग इट इन योर y वेरिएबल विच इज ऑन द स्टैक। y वेरिएबल इज ऑन द स्टैक। करेक्ट? तो उसमें वो प्रिमिटिव वैल्यू आके स्टोर हो गया। तो इन दिस द इंटीजर ऑब्जेक्ट इज अनबॉक्स्ड, इंटीजर रैपर ऑब्जेक्ट इज अनबॉक्स्ड एंड द इंट वैल्यू 42 इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। मींस उसके अंदर जो 42 प्रिमिटिव वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो रखी है वो प्रिमिटिव हम बाहर निकाल रहे हैं। करेक्ट? तो दैट इज अ अनबॉक्सिंग टेक्निक। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इट इज। करेक्ट? सो ऑटोमेटिक कन्वर्टिंग द प्रिमिटिव to a wrapper object by the compiler is autoboxing, and automatically extracting the primitive from the wrapper object is called unboxing. That simple definition it is. Getting? Okay. Then I'm just listing out the primitives and their corresponding wrapper objects. Getting? You can see if you have a boolean data type, its corresponding wrapper class is boolean B capital. That is the rule of Java, that all the classes which Java has provided in different packages, actually these all are in Lang package, guys. These all classes are present in Lang package, and actually they all are derived from one common parent class called number. Getting? So no need to go into too much detail about their hierarchy and all. At least just remember that these are the corresponding classes for the corresponding primitive type. So if you have a primitive type byte, its corresponding class is byte, B capital. For short, character. For char, it is character. Int, integer, long, float, and double. So all these are the corresponding wrapper classes. And when they are wrapper classes, you have to create an object. Object means they will be on the heap. Their reference will be on the stack, but the object will get the space on heap. Okay? So I hope you are understanding this concept. Actually, this concept is just a syntactic sugar. Okay? It is just internally going to create the same boilerplate code. Only for the programmer, they have made it easy. Getting? Syntactic sugar इसलिए कह रहे हैं कि हमारे लिए syntactically आसान किया है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसलिए उसको sugar, that is what we are saying. We feel कितना आसान कर दिया कि एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिमिटिव असाइन करो, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव को असाइन। बट एक्चुअली कंपाइलर बैकग्राउंड में उस जगह पे क्या रिप्लेस करने वाला है, वही ट्रेडिशनल कोड, जो लेगेसी कोड है, वो बॉयलरप्लेट कोड है। गेटिंग? एक जगह पे ऑटोबॉक्सिंग के समय स्टैटिक मेथड कॉल करेगा, अनबॉक्सिंग के समय इंस्टेंस मेथड कॉल। ओके, so that's what I want to say. The compiler translates autoboxing, unboxing calls into implicit method calls at compile time, nothing at runtime. अभी आपका कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होने वाला है डॉट जावा टू डॉट क्लास. गेटिंग? योर डॉट जावा इज नॉट येट कन्वर्टेड टू डॉट क्लास में बाइट कोड भी बनानी है. उसके पहले ही कंपाइलर इस सब जगह पे क्या रिप्लेस कर देता है. जब आप कंपाइलेशन के लिए जाओगे तो जहां भी आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है, दिस थिंग इंटीजर x इक्वल टू 42, कंपाइलर 42 को वो लाइन से रिप्लेस करेगा इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 42. एंड वेयर यू हैव असाइन्ड अ ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, इस जगह पे ऑटोमेटिक क्या डाल दिया रहेगा, x डॉट इंट वैल्यू. सो दिस इज replaced with that traditional code only, guys.
but who is going to replace it for you? Compiler at compile time, and then the code goes for bytecode generation. Correct? So that's what I'm saying. The autoboxing, unboxing are actually replaced by the appropriate method calls by the compiler at compile time. It is just a purely syntactic sugar. देखो यहाँ what we write, actually हम लोग लिखते हैं integer equal to 5, बिकॉज फैसिलिटी दी है ना जावा 5 ने ऑटोबॉक्सिंग का, कि जावा कहता है कि आप डायरेक्टली प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट को असाइन करो, ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव को। बट डायरेक्ट ये देखकर हमें पता चलता है, मैं ऐसे लगता है कि कैसे पॉसिबल है ये तो नॉन नॉन ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिमिटिव, हाउ कैन यू असाइन अ प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव और अ नॉन प्रिमिटिव? सो डोंट वरी, ये अल्टीमेटली आने वाला है टू द स्टैंडर्ड थिंग ओनली। आरएचएस में ऑब्जेक्ट ही आने वाला है, एंड इधर भी आरएचएस में एक मेथड कॉल होगा जो इंटीजर ही रिटर्न करेगा। Correct? So this lines which we wrote, compiler is actually going to replace it with this. Correct? What we write, what the compiler generates. See, this 5, it is getting replaced with integer dot value of 5. And what is the static method value of? ये वैल्यू ऑफ जो स्टैटिक मेथड है वो रन टाइम क्या करेगा, एक इंटीजर रैपर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें 5 एनकैप्सुलेट करेगा और उस ऑब्जेक्ट को हिप पे रखा है तो उसका रेफरेंस तुम्हें लाके देगा ए में। एंड यहां भी वही हो रहा है, ए डॉट इंट वैल्यू, ये इंस्टेंस मेथड है, तो ये इंस्टेंस मेथड रन टाइम ये ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई प्रिमिटिव बाहर निकालेगा और तुम्हें प्रिमिटिव में ही देगा। तो अल्टीमेटली यू आर नॉट स्पॉइलिंग व्हाट द सिंटैक्टिक रूल्स दैट यू कैन नॉट, प्रिमिटिव को ही असाइन होता है और नॉन प्रिमिटिव को ही, तो इस जगह पे भी नॉन प्रिमिटिव ही बनने वाला है, ये एक ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट होने वाला है, और यहां भी प्रिमिटिव ही एक्सट्रैक्ट होगा, अनबॉक्सिंग कंसेप्ट। ठीक है? सो आई होप यू गॉट इट, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, automatic converting the primitive to corresponding wrapper object by the compiler, it is autoboxing, and extracting the primitive, automatically extracting the primitive kept in the wrapper object is called as unboxing. Correct? Okay? and याद रखना है बॉक्सिंग के एंड अनबॉक्सिंग के दोनों के करस्पॉन्डिंग मेथड्स है। याद रखना बॉक्सिंग के लिए स्टैटिक मेथड्स है एंड अनबॉक्सिंग के लिए इंस्टेंस मेथड्स है। इंस्टेंस ही होना चाहिए ना, क्योंकि हमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा है वो चाहिए, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या है तो वो रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट का मेथड ही उसको इन्वोक करेगा ना, तो वी नीड इट इंस्टेंस मेथड ओनली। करेक्ट? सो अनबॉक्सिंग का इंस्टेंस मेथड है, बॉक्सिंग का स्टैटिक मेथड है। ठीक है? देखो इधर इंटीजर के लिए वैल्यू ऑफ पास इंटीजर, will it convert that integer primitive to integer wrapper object? yes. ये मेथड करता ही क्या है, लेगा प्रिमिटिव और उस करस्पॉन्डिंग रैपर का ऑब्जेक्ट बना के उसमें ये प्रिमिटिव रखेगा और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें लाके देगा। करेक्ट? तो देखो इंटीजर के लिए वैल्यू ऑफ है, लॉन्ग का भी वैल्यू ऑफ, तो हर एक का अपना अपना वैल्यू ऑफ मेथड है। एंड टू गेट द प्रिमिटिव विच इज केप्ट इन दैट ऑब्जेक्ट there are instance methods. Correct? For unboxing, for integer there is int value long, for long it is long value, for double it is double value, for boolean it is boolean value, for character it is char value, byte value, short value, and float value. Getting? So I hope this both the methods, the static method and the instance method, both methods are clear. Okay, now quickly we'll see the situations where autoboxing takes place and the situations where unboxing happens. Okay, so quickly we will discuss about all these situations. So where autoboxing happens, automatic. So one already we have seen, when you are assigning, जब assignment करता है किसी primitive को wrapper object को assign करते हो तब automatic autoboxing होने वाला है। First thing, that is assignment. Situations I'm saying, see, this is an integer wrapper class, double wrapper class, boolean wrapper class.
तो अपने रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में, रैपर क्लास के जब वेरिएबल्स बनाते हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है, दे आर रेफरेंस वेरिएबल। इसमें रेफरेंस आने वाला है किसका? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट किधर है? हिप पे। तो व्हेन यू आर असाइनिंग अ प्रिमिटिव टू अ रैपर ऑब्जेक्ट, असाइनमेंट, तब 100 आई में नहीं स्टोर होने वाला है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड, इट इज गोइंग टू कॉल इंटीजर रैपर क्लास स्टैटिक मेथड वैल्यू ऑफ। कंपाइलर इसको किस लाइन से रिप्लेस करेगा? 100 को कट करके इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 100। ये 3.14 को भी डबल डॉट वैल्यू ऑफ 3.14। ये ट्रू को भी बुलियन डॉट वैल्यू ऑफ ट्रू। Understanding? That line is getting replaced by the compiler. And what that method is going to do? Create a wrapper object on the heap, store the primitive in that object, and give the reference of that object to you, and you're storing it. So here automatic int is converted to integer wrapper, double primitive to double wrapper, boolean primitive to boolean wrapper. This is first way. Okay, this is first situation where autoboxing happens. Second situation, method argument. Autoboxing takes place. Means you have created a method whose parameter type is integer object, but while calling you are passing a primitive. Getting clear? See here. आपने एक मेथड बनाया है void print. Print नाम की मेथड है, कुछ रिटर्न नहीं करने वाली है, but it is taking one parameter of type integer. This integer is a wrapper object, I capital. तो ये ऑब्जेक्ट है, बट कॉल करते समय मैं आर्ग्यूमेंट, ये पैरामीटर, ये आर्ग्यूमेंट है। एक्चुअल्स आर आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल्स आर पैरामीटर। तो कॉल करते समय मैंने एक्चुअल क्या पास किया है? 42, विच इज प्रिमिटिव। तो ये 42 n में आके स्टोर होगा क्या गाइस? नो। तो पहले ये 42 उसके रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, एंड फिर वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसमें आएगा। यहां भी ऑटोबॉक्सिंग हो रहा है। You understanding or no? Here also autoboxing is happening. Here what will happen? It will इधर ये 42 निकाल देगा और इस जगह पे क्या डाल देगा? इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 42। मीन्स हिप पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा इंटीजर क्लास का, उसके अंदर वो प्रिमिटिव 42 एनकैप्सुलेट होगा, और फिर उसका रेफरेंस जो भी है वो पास होगा। मीन्स एक्चुअली 42 नहीं पास होने वाला है, पहले वो 42 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑब्जेक्ट। देखो, इंट ऑटोबॉक्स टू इंटीजर ऑब्जेक्ट। तो कंपाइलर इस जगह पे ये 42 को कट करके उस जगह पे वो बॉयलर प्लेट कोड डाल देगा, व्हाट? इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 42। तो इट विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट ऑन द हिप। विच ऑब्जेक्ट? इंटीजर क्लास ऑब्जेक्ट। encapsulate in that object 42, return the reference of it, and that reference is passed over here. तो n अभी actually क्या collect करेगा? Is n going to collect primitive 42, or is it going to collect the reference of a 42, reference of an integer object in which 42 is there? So it is going to collect the reference. Okay? एंड फिर system.out.println n। अभी जब n पास कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि SOP को कभी भी हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं। एनी टाइम whenever we pass object to SOP, what is called over there implicitly? एक मैजिक मेथड कॉल होती है कि नहीं? Which is that magic method? Dot to string. We have discussed in the past session. क्या कॉल होगा? n dot to string. And what is n dot to string does? n तो अभी वो रैपर ऑब्जेक्ट है ना, तो वो क्या करता है? उसके अंदर जो रखा हुआ प्रिमिटिव है उसका स्ट्रिंग वर्जन आपको देगा, 42 इन डबल कोट, एंड फिर वो डबल कोटेड 42 हम प्रिंट को भेज रहे हैं, प्रिंट मॉनिटर पे दिखाएगा। गेटिंग? बट डिड यू ऑब्जर्व दैट यू आर पासिंग अ प्रिमिटिव, बट देयर इट इज अ इंटीजर ऑब्जेक्ट। गेटिंग? क्विकली आई विल शो यू दिस। ओके, and in a J shell I'll show you. See, you're creating a function void print
which takes an object of integer, and we are simply printing that integer. Okay, and now when I'm calling that method and I'm passing 40 to it, ठीक है, मैं जब उसको 42 पास कर रहा हूं, is 42 getting printed? Print 42, 42 printed. बट अभी डाउट आएगा ना कि पैरामीटर तो इंटीजर ऑब्जेक्ट है, बट कॉल करते समय तो प्रिमिटिव पास किया, ये कैसे पॉसिबल है? कॉल करते समय तो प्रिमिटिव पास हुआ और वहां तो ऑब्जेक्ट है, तो यही तो खासियत है. दिस इज व्हाट हैपनिंग गाइस. व्हाट इज हैपनिंग हियर? ओनली व्हाट इज हैपनिंग? Autoboxing. This 42 is getting converted into a wrapper object, and then the wrapper object is passed. Okay, then there are many other situations also, ठीक है, like return statement. जैसे एक मेथड है जिसमें अंदर से हम रिटर्न कर रहे प्रिमिटिव, बट उसका रिटर्न टाइप बताया गया है एज अ ऑब्जेक्ट. सी गेट वैल्यू, गेट वैल्यू, और इसका रिटर्न टाइप तो आपने डिक्लेयर किया है एज इंटीजर रैपर ऑब्जेक्ट. मेथड का नाम है गेट वैल्यू. इट इज नॉट टेकिंग एनीथिंग, बट फ्रॉम इनसाइड इट इज रिटर्निंग अ प्रिमिटिव. अंदर से क्या रिटर्न कर रहा है? प्रिमिटिव. बट इधर तो डॉक्यूमेंट किया है कि इट इज रिटर्निंग अ ऑब्जेक्ट. यहां तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ऐसे बताया, बट अंदर से तो प्रिमिटिव. तो एक्चुअली प्रिमिटिव रिटर्न ही नहीं होगा. कंपाइलर ये 99 की जगह पे क्या डालेगा? इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 99. सो व्हाट विल हैपन? दैट 99 विल गेट स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट, एंड फिर वो ऑब्जेक्ट ही अल्टीमेटली रिटर्न होगा. अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ही क्या होने वाला है? रिटर्न. अंडरस्टैंडिंग? प्रिमिटिव रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि इधर रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, तो प्रिमिटिव कैसे रिटर्न होगा? तो यहां अगेन ऑटोबॉक्सिंग हो गया. ये 99 किस में ऑटोबॉक्स हो गया? दैट इज इंट 99 टू इंटीजर रैपर क्लास. तो एक ऑब्जेक्ट बना, उसमें 99 स्टोर हुआ, और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा. अंडरस्टैंडिंग गाइज? ठीक है. देन एक और बहुत कॉमन एप्लीकेशन है जहां ऑटोबॉक्सिंग यूज होता है, दैट इज इन कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कलेक्शंस का एक पूरा अलग से लेक्चर्स आने वाले हैं इन द कमिंग सेशंस, जब हमने हमारे सब कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस, ये सब खत्म हो जाएगा, तब फिर हमारा कलेक्शंस के लेक्चर शुरू हो जाएंगे. गेटिंग? अभी टाइम बिंग के लिए याद रखो, कलेक्शन इज अ ऑब्जेक्ट विच स्टोर मेनी ऑब्जेक्ट. मीन्स वो खुद एक ऑब्जेक्ट है, बट जिसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं? मेनी ऑब्जेक्ट. बट कलेक्शन का एक रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रखे जा सकते हैं, प्रिमिटिव नहीं. मीन्स किसी भी टाइप का कलेक्शन बनाओ. कलेक्शन के काफी टाइप्स है, लाइक array list, linked list, vector, getting? Then we have priority queue, then we have set related, tree set, hash set, linked hash set. कितने सारे टाइप के कलेक्शंस है, बट कलेक्शंस कौन होता है ये क्लियर है. इट इज अ ऑब्जेक्ट एंड विच स्टोर्स मेनी ऑब्जेक्ट. गेटिंग? जैसे अभी आपके स्कूल बैग लो, तो कॉलेज बैग लो, या ऑफिस बैग लो, तो बैग खुद एक ऑब्जेक्ट है. बैग एक खुद ऑब्जेक्ट है, बट उसके अंदर मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं ना. आपका लैपटॉप है, चार्जर है, आपका पावर बैंक रहेगा, टिफिन बॉक्स है, नोटबुक है, पेन है, वॉट एवर, ईयरबड्स है. तो ये सारी चीजें क्या है? ऑब्जेक्ट्स. बट इन ऑब्जेक्ट्स को अगेन एक बिगर ऑब्जेक्ट में रखा है ना, तो उसको हम कलेक्शन ऑब्जेक्ट. बट इसकी खासियत क्या है कि ये कलेक्शन के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही रखे जा सकते हैं. उन्होंने वो रूल बनाया, ओनली ऑब्जेक्ट्स. बट अगर मुझे इसके अंदर प्रिमिटिव रखने, मीन्स ये कलेक्शन में मुझे 25 स्टोर करना है, 30 स्टोर करना है, तो आई कैन नॉट स्टोर प्रिमिटिव. I have to convert that all primitive into their wrapper objects and then only store it. You understanding guys? That is the rule. And वो rule है कि collections always work on objects. They don't work directly on primitives. वो primitive पे काम नहीं करता है. तो अगर primitive पे काम करना है तो उन primitives को भी किस में convert करना पड़ेगा?
रैपर ऑब्जेक्ट्स, एंड फिर वो रैपर ऑब्जेक्ट्स किस में स्टोर कर सकते हो, कलेक्शन। तो ऑटोबॉक्सिंग के वजह से तुम्हें चिंता नहीं करना है, कलेक्शन बनाओ एंड डायरेक्टली उसके अंदर क्या स्टोर करते जाओ, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव स्टोर होने ही नहीं वाला है। ऑटोबॉक्सिंग की वजह से हर एक प्रिमिटिव किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट, एंड अल्टीमेटली अंदर जाके वो कलेक्शन में ऑब्जेक्ट ही स्टोर होगा। अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग? लाइक देखो इधर मैं अभी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं ऑफ अरे लिस्ट। अरे लिस्ट एक कॉन्क्रीट है और लिस्ट उसका इंटरफेस है। तो अभी टाइम बिंग के लिए याद रखो कि ये इसका पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ऐसे अभी टाइम बिंग के लिए, बिकॉज वी आर नॉट मच अवेयर अबाउट द इंटरफेसेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड दैट मच डिटेल। तो अभी इतना ही याद रखो कि हमने एक इंटीजर सॉरी अरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका रेफरेंस ये लिस्ट में रखा है, और इधर हमने उसका टाइप भी बताया कि इट इज गोइंग टू वर्क ओनली ऑन विच ऑब्जेक्ट, इंटीजर ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये बन गया लिस्ट ऑब्जेक्ट। अभी इसके अंदर मुझे इंटीजर स्टोर करना है, तो मैं स्टोर करते समय डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, लिस्ट ऐड मेथड होती है, वो अरे लिस्ट की वो ऐड मेथड है। तो एक एक करके आप ऐड करके वैल्यूज कॉपी करते जा सकते हो, लिस्ट डॉट एड 10। बट इन रियलिटी वो 10 कभी लिस्ट में जाके स्टोर होगा ही नहीं। 10 पहले इंटीजर रैपर में रैप होगा और फिर स्टोर होगा। ये इधर बताना है कि ये 10 जो हमें दिख रहा है प्रिमिटिव, उसके ऊपर पहले ऑटोबॉक्सिंग लगेगा। ये 10 इंटीजर रैपर के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और फिर वो ऑब्जेक्ट अंदर जाके स्टोर होगा। एंड अगर आप वो कलेक्शन में से एक ऑब्जेक्ट निकाल रहे, जीरोथ प्लेस पे कौन है, तो जीरोथ प्लेस पे 10 है, तो वो 10 नहीं लाएगा, वो रैपर ऑब्जेक्ट लाएगा गाइस, इंटीजर रैपर ऑब्जेक्ट। एंड फिर वो इंटीजर ऑब्जेक्ट अनबॉक्स होगा, क्योंकि आप प्रिमिटिव को असाइन कर रहे हैं ना। अंदर से आते समय क्या आने वाला है, इंटीजर रैपर ऑब्जेक्ट, क्योंकि अंदर रैपर ऑब्जेक्ट गए, 10 गया नहीं है। हमें लगता है कि 10 गया, मैंने प्रिमिटिव 10 गया, नहीं, एक रैपर ऑब्जेक्ट बना किसका, इंटीजर क्लास का, उसमें वो 10 रखा एंड फिर वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर डंप किया, क्योंकि वो रूल है कलेक्शंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही रखे जा सकते हैं, यू कैन नॉट स्टोर डायरेक्टली प्रिमिटिव। बट ऑटोबॉक्सिंग ने हमारा काम आसान किया है, डायरेक्टली प्रिमिटिव ऐड करते जा रहा है बट रियलिटी में प्रिमिटिव नहीं जा रहा है। ऑटोबॉक्सिंग की वजह से ये हर प्रिमिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रैपर ऑब्जेक्ट, एंड फिर वो रैपर ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं। एंड जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मैंने निकाल रहे हो एक एक वैल्यू रैपर ऑब्जेक्ट से, मैं बोल रहा हूं कि जीरोथ प्लेस पे जो है मुझे दे, तो वो लाके देगा इंटीजर ऑब्जेक्ट, एंड वो इंटीजर ऑब्जेक्ट जब प्रिमिटिव को गया तो प्रिमिटिव नहीं होने वाला है, वहां अनबॉक्सिंग होगा। गेटिंग? तो दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू वांट क्विकली आई विल शो यू हियर। Always remember, you need, if you want to use collections, you need to import java.util.start. See, I'm creating a list object and I'm telling that in that what is stored, all integer objects, because object ही store हो सकते हैं। याद रखना है कलेक्शंस के अंदर प्रिमिटिव रखना अलाउड नहीं है। मैंने अगर आपने ऐसे लिखा लिस्ट ऑफ इंट, नॉट पॉसिबल, इट इज अ एरर। हाँ, आप अपना यूजर डिफाइंड क्लास लिख सकते हो, लाइक एम्प्लॉय लिखा चलेगा, मीन्स यू कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, कस्टमर ऑब्जेक्ट। गेटिंग? क्यों? क्योंकि कलेक्शन में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही जा सकते हैं, तो प्रिमिटिव भी डालना रहेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग रैपर लेना पड़ेगा। गेटिंग? तो लिस्ट, इंटीजर लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं। ठीक है? दैट इज द स्टाइल टू राइट एंगल ब्रैकेट टू मेंशन द डेटा टाइप। योर राइट साइड ऑल्सो यू कैन मेंशन दैट, नहीं लिखा तो भी इससे वो इन्फर करता है, डिराइव करता है। करेक्ट? अभी इसके बाद में इसमें वैल्यू ऐड करते जा सकता हूं। मैंने 10 ऐड किया, लिस्ट डॉट ऐड 20 ऐड किया, तो एक्चुअली 20 एंड 10 नहीं जाने वाला है, क्योंकि 10 एंड 20 आर प्रिमिटिव्स। तो प्रिमिटिव इसमें जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इट इज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर ऑब्जेक्ट्स।
तो ऑटो बॉक्सिंग अप्लाई होगा. 10 will get converted into integer object and then add. 20 will get converted into integer object and then add. तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ क्या अप्लाई होने वाला है? ऑटो बॉक्सिंग. Getting? And when you're trying to get the value like this, list dot get of 1. So what is there at 1th place? 20. What is at 0th place? 10. तो एक्चुअली वो 20 नहीं है, वो रैपर ऑब्जेक्ट है जिसमें 20 है. तो व्हेन आई राइट लिस्ट डॉट गेट ऑफ 1, इट विल गिव यू अ इंटीजर ऑब्जेक्ट एंड फिर उसकी डॉट इंट वैल्यू कॉल होगी जो आपको प्रिमिटिव लाके देगी. मींस वहां क्या होने वाला है? अनबॉक्सिंग. करेक्ट? तो आएगा ऑब्जेक्ट एंड स्टोर कर रहे प्रिमिटिव, तो यहां अनबॉक्सिंग. पास किया प्रिमिटिव तो वो बॉक्स होके फिर स्टोर होने वाला. तो ये रूल याद रखो. तो ऐसे थोड़े सिचुएशंस बताए जहां ऑटो बॉक्सिंग होता है. अब देखते हैं ऐसे सिचुएशन जहां अनबॉक्सिंग हो रहा है ऑटोमेटिक. सो वेयर अनबॉक्सिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली. Getting? So automatically when unboxing will happen, when you are assigning a wrapper object to primitive. अगर एक wrapper object को primitive में दे रहे हैं तो unboxing ही होने वाला है. Getting? और बहुत जगह पे arithmetics में होगा, comparison में होगा, बहुत जगह पे unboxing होगा. Getting? तो if you have a wrapper object, ठीक है? And please remember, never 42 will be stored in I. Here compiler is going to replace this line with integer dot value of 42. And what is that method going to do? That static method, create an object of integer class on heap, store 42 in that object and then return the reference of that object. Ultimately हमें reference ही मिलने वाला है. अभी अगर मैं ये असाइन कर देता हूं टू अ प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल, दिस आई, तो ऑब्जेक्ट में प्रिमिटिव को दे रहा हूं, बट रियलिटी में ऑब्जेक्ट कभी प्रिमिटिव नहीं जाने वाला. यहां भी कंपाइलर क्या रिप्लेस करेगा? आई डॉट इंट वैल्यू. यस और नो? आई डॉट इंट वैल्यू कंपाइलर विल रिप्लेस. And what is that int value instance method going to do? Extract the primitive which is kept in that object and return that primitive which you are storing in primitive only. So ultimately you are not spoiling the concept of primitive, non-primitive. ठीक है? Situations बताता हूँ. So where unboxing happens automatically. So one, when you are doing arithmetic on a wrapper object. Arithmetic on wrapper object up कर रहे हो. देखो. Is this a integer object? Is this another integer object? What is internally going to happen? हमने ये 10 को डायरेक्टली A को असाइन किया, तो यहाँ ऑटो बॉक्सिंग हो गया. 20 डायरेक्टली B को ऑटो बॉक्सिंग हो गया. लाइक दिस. A हिप पे एक ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर वो 10 स्टोर्ड है और उसका रेफरेंस A में आ गया. अगेन दूसरा ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर ये प्रिमिटिव स्टोर्ड है और फिर उसका रेफरेंस बी में आ गया. ठीक है? इंटरनली ये ऐसे हुआ है, हमने सिर्फ प्रिमिटिव दे दिया है, बट कभी 10 उसमें स्टोर होने ही नहीं वाला है. कंपाइलर ये 10 को निकाल के इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 10, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 20 एंड फिर रन टाइम एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें वो प्रिमिटिव स्टोर्ड और फिर उसका रेफरेंस. अगेन ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर उसका रेफरेंस. अब अगर आप दो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं तो कभी कभी डाउट आता है, हाउ कैन यू ऐड अ ऑब्जेक्ट इन जावा? बट इट इज अलाउड फॉर रैपर्स. क्यों? क्योंकि कभी ऑब्जेक्ट ऐड होने ही नहीं वाला है. कंपाइलर इधर क्या कॉल करेगा? ए की जगह पे ए डॉट इंट वैल्यू, बी डॉट इंट वैल्यू. मीन्स यहां दोनों जगह पे क्या होगा? अनबॉक्सिंग. एंड फिर अंदर रखी हुई प्रिमिटिव बाहर आएगी, दैट इज 10. वो ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रिमिटिव बाहर आएगी 20. एंड फिर दो प्रिमिटिव ऐड हो सकते हैं ना डायरेक्टली. गेटिंग? तो हियर इज अनबॉक्सिंग हैपनिंग. आई होप इट इज क्लियर. Objects are not getting added. Here, this is getting replaced with a dot int value. Getting?
compiler is replacing that with a dot int value, and same way here also for b it is replacing it with b dot int value, b dot int value. And what is there in that object? 20. What is there in that object? 10. So it will bring that primitive values, and then those two primitive values are added and stored in the primitive. Okay? It is so simple concept. Same way, when you're doing compound assignment, there also unboxing is happening. Okay? Like, see here, you're writing integer n equal to 5, and then you're writing n plus equal to 3. Whereas this n is a object. अभी तुम लोगों को डाउट आएगा कि n तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली प्रिमिटिव ऐड करके वापस उसमें स्टोर इज अलाउड. इंटरनली ये ऐसे हो रहा है, देखो इंटरनली ये ऐसे होता है. n ऑब्जेक्ट है ना, राइट और नो? n में 5 नहीं स्टोर्ड है, यहां ऑटोबॉक्सिंग हो गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है. लाइक दिस हैज हैपेंड. इंटरनली स्टैक पे एक हिप पे एक ऑब्जेक्ट बना, उसमें एनकैप्सुलेट 5 किया है इंटीजर रैपर का, और उसका रेफरेंस किस में आ गया है? n में. इज दिस हैपेंड automatically? Yes. And when you are writing n plus equal to 3, actually it is calling int value of this n. n का int value call करता है, जो ये 5 लाके देगा प्रिमिटिव. देखो, ठीक है. एंड फिर वो 5 ये 3 प्रिमिटिव के साथ ऐड होगा 8, और फिर ये 8 वापस इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ को पास करेगा. अंडरस्टैंडिंग? इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ मीन्स कैसे अनबॉक्स भी हो गया एंड अगेन रीबॉक्स मीन्स अगेन ऑटोबॉक्सिंग ही हो गया. ठीक है. तो ये n में जो प्रिमिटिव है वो निकालेगा, दैट इज अनबॉक्स हो गया. फिर ये दूसरे प्रिमिटिव के साथ एडिशन होगा 8, एंड फिर ये वापस एक नए ऑब्जेक्ट के लिए पास होगा. क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ को पास किया ना, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 8. So again a new object created, 8 stored in it, and its reference is stored in n. The old reference is gone. ये पुराना जो 5 का रेफरेंस है वो चला गया, और ये नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस n में आ जाएगा. Getting? See carefully, internally what is happening. n is calling int value, which is giving the primitive. Therefore, unboxing has happened. Then that unboxed value is added with 3. वो जो अनबॉक्स्ड वैल्यू हो किसके साथ ऐड हो गई? 3. फिर नया प्रिमिटिव, वो प्रिमिटिव वापस ऑटोबॉक्स हो गया, दैट इज रीबॉक्स. एंड अगेन अ न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, फिर ये 5 + 3 उसमें स्टोर्ड, और फिर उसका रेफरेंस n में जो पुराने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो चला गया. गेटिंग? सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इफ यू डू n++ ऑन अ ऑब्जेक्ट. थोड़ा देख के वियर्ड लगता है ना कि ये ऑब्जेक्ट उस पर प्लस कैसे, बट अलाउड है. इंटरनली क्या होने वाला है? सेम सीक्वेंस, सेम कॉन्सेप्ट होगा. n डॉट वैल्यू ऑफ विच इज 8, देन उसमें +1 करेगा 9, और ये 9 वापस किसको पास करेगा? इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 9. अगेन ये 9 किसमें कन्वर्ट होगा? किसमें रैप होगा? एक ऑब्जेक्ट. एंड फिर उसका रेफरेंस वापस किसमें स्टोर किया? n में. अगेन इट इज स्टोर्ड इन n. गेटिंग? तो सेम टेक्निक, इट इज अनबॉक्स्ड, देन एडेड 1, एंड अगेन रीबॉक्स्ड. सो सी हाउ द कंसेप्ट्स आर, राइट और नो? देन इवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर अ रैपर ऑब्जेक्ट विद अ प्रिमिटिव. आपके पास एक रैपर ऑब्जेक्ट है, रैपर ऑब्जेक्ट में समझ रहा है ना, किसी भी 8 टाइप का, 8 डेटा टाइप्स का. तो रैपर ऑब्जेक्ट है और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं प्रिमिटिव के साथ. दैट टाइम ऑल्सो अनबॉक्सिंग इज हैपनिंग. गेटिंग? एग्जाम्पल, सी, यू आर ट्राइंग टू कंपेयर x विथ 100, x डबल इक्वल टू 100, बट जबकि 100 प्रिमिटिव है एंड x तो रैपर ऑब्जेक्ट है. यहां ऑटोबॉक्सिंग हुआ कि नहीं गाइस? 100 is primitive, you are giving it to integer object, तो कभी इंटीजर में होने ही नहीं वाला है. कंपाइलर इसको इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 100 में कन्वर्ट करेगा.
मीन्स इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट में 100 स्टोर्ड है, फिर वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस. नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग दैट ऑब्जेक्ट विथ प्रिमिटिव, here again unboxing is happening. Here compiler is going to call x dot int value, and what it will return? The integer stored in it, 100, and then 100 equal to 100. Yes, logic. Get it? So here first unboxing is applied on x, and it will bring the primitive integer and that primitive int with int. Same is the case for comparison. जब x को 50 से कंपेयर कर रहे हैं तो x तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली 50 से कंपेयर होगा क्या? नहीं. तो यहां x के ऊपर क्या होगा? अनबॉक्सिंग. Getting? Meaning I'll show you in a notepad code. It will be more clear to you. ठीक है? See guys, you have written integer x equal to 100, and when you are writing if x double equal to 100, okay, so actually x is a object, and object you are comparing it with primitive 100. Can we compare object with a primitive directly? ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव से कंपेयर नहीं हो सकता है. तो हमें ये ईज दिया है, दैट इज व्हाट द फैसिलिटी ऑफ ऑटोबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, कि हमें डायरेक्ट फैसिलिटी दिया है कि आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिमिटिव से कंपेयर करो. कौन सा ऑब्जेक्ट? बट रैपर. नहीं तो कोई भी बोलोगे एम्प्लॉय का चलेगा क्या, कस्टमर का? नो, ओनली रैपर. तो रैपर ऑब्जेक्ट को 100 से कंपेयर कर रहे हैं, तो रियलिटी में क्या होने वाला है? कंपाइलर इस x की जगह पे x डॉट इंट वैल्यू ऐसे मेथड को कॉल करेगा उस जगह पे, x डॉट इंट वैल्यू. एंड व्हाट इज दिस इंट वैल्यू मेथड ऑफ दैट x गोइंग टू रिटर्न? 100 विच इज स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो 100 रखा है वो आ जाएगा. एंड फाइनली आप किसको कंपेयर कर रहे हैं? वो प्रिमिटिव को प्रिमिटिव के साथ ही. दैट इज द ब्यूटी ऑफ autoboxing and unboxing. Getting? How compiler is doing the work for you. Understanding? Same thing here also. Compiler is going to replace this x with x dot int value. And what this int value going to return? The primitive kept in it. That is 100. Then that 100 primitive is compared with 50 primitive, which is allowed. Legally, you can do the comparison between primitive. राइट और नो? नॉट बिटवीन अ ऑब्जेक्ट एंड अ प्रिमिटिव. जावा ऐसे अलाउ नहीं करता है. ऑब्जेक्ट एंड प्रिमिटिव के बीच में ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है. तो अल्टीमेटली ये प्रिमिटिव आने वाला है क्योंकि इस जगह पे अनबॉक्सिंग होने वाला है गाइस, राइट? इवन इन टर्नरी ऑपरेटर, बट यू हैव टू बी केयरफुल because sometimes in the ternary operator, if the object contains null, it will throw null pointer exception. I'll show you that. See, अभी आप टर्नरी में इसका यूज कर रहे हैं. देखो, इंटीजर a इक्वल टू नल. कैन यू असाइन अ नल टू ऑब्जेक्ट? यस, बट कैन यू असाइन अ नल टू अ प्रिमिटिव? नो. नल कभी प्रिमिटिव को नहीं जा सकता है. नल एक रेफरेंस है, तो रेफरेंस है तो वो ऑब्जेक्ट को ही जाएगा. अभी अगर मैंने टर्नरी में ये रैपर ऑब्जेक्ट यूज किया तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए रिजल्ट को दो, अदरवाइज 0 रिजल्ट को दो, और रिजल्ट तो प्रिमिटिव है. अंडरस्टैंडिंग और नो गाइस? पहले कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो ए रिजल्ट को जाएगा, अदरवाइज 0 रिजल्ट को. बट अगर ए रिजल्ट को जाने वाला है, रिजल्ट को क्या स्टोर होने वाला है? ए. तो कभी ए डायरेक्टली रिजल्ट में स्टोर होगा? नो, क्योंकि ए तो ऑब्जेक्ट है, रैपर का ऑब्जेक्ट है ना ए, एंड रिजल्ट तो प्रिमिटिव है. तो ऑब्वियसली इस जगह पे क्या होगा? अनबॉक्सिंग. मींस यहां क्या कॉल होगा? डॉट इंट वैल्यू. एंड फिर ऑब्जेक्ट में रखी हुई जो इंट वैल्यू है वो रिजल्ट में आएगी. बट प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है कि एज ये ऑब्जेक्ट है और अगर उसमें नल है तो बाद में कंपाइलर इसको किससे रिप्लेस करने वाला है? ये ए को. ए डॉट इंट वैल्यू ऐसे रिप्लेस होगा. बट रन टाइम अगर ए में रेफरेंस ही नहीं है
तो is it legal to call a int value method for a object which doesn't contain a reference only? ऑब्जेक्ट में अगर रेफरेंस ही नहीं है तो हम मेथड कभी कॉल कर सकेंगे क्या? इट इज इलीगल टू कॉल द मेथड फॉर अ ऑब्जेक्ट विच डजंट कंटेन ओनली रेफरेंस. ए में अगर रेफरेंस ही नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का, हिप पे किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही नहीं है, तो कैन यू कॉल द मेथड? It is like a baby is not born only and you are filing income tax and you're purchasing properties and gold and all for that baby's name, whereas the baby doesn't exist only. Exact same thing. Object exist ही नहीं कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का आप मेथड्स कभी कॉल कर सकेंगे क्या? नो. तो अगर आप मेथड कॉल करने गए अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए एंड ऑब्जेक्ट में नल है तो रन टाइम नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो होगा. एंड ये केस में तो श्योर होने वाला है. क्यों? क्योंकि ए में नल है एंड कंपाइलर तो इस जगह पे क्या रिप्लेस करने वाला है? ए की जगह पे ए डॉट इंट वैल्यू. Getting? I'll show you the demonstration. See, you're creating a integer wrapper object but not storing anything in it. Null. Okay, and now in int result equal to ternary operator true. So a, otherwise suppose 10 whatever. तो या 0. तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ट्रू है मींस ये कंडीशन ट्रू है तो ए रिजल्ट में आएगा, नहीं तो 0 रिजल्ट में आएगा. बट जब ए रिजल्ट में आएगा तो एक्चुअली ए रिजल्ट में नहीं आएगा क्योंकि ए तो रैपर ऑब्जेक्ट है. तो कंपाइलर इस जगह पे ए के जगह पे ए डॉट इंट वैल्यू रिप्लेस कर चुका रहेगा. बट रन टाइम जब ए डॉट इंट वैल्यू कॉल करने जाएगा रन टाइम तो ए में तो रेफरेंस ही नहीं है, तो विल इट थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शन? यस. सी, अपने केस में तो होने ही वाला है क्योंकि ट्रू है. ट्रू इज ट्रू, देयरफॉर ए इज सपोज टू कम. बट ए जब सपोज टू कम तो इस जगह पे कंपाइलर ने ए डॉट इंट वैल्यू कॉल किया. सी, यू कैन चेक, कैन नॉट इनवोक इंट वैल्यू बिकॉज that A contains null reference. Getting? So you have to be very careful in such situations. ठीक है? For that, some other alternatives are given. Don't worry. ठीक है? I hope it is clear. Now, some more little bit concepts are remaining about autoboxing and unboxing to wind up with this topic. Next thing what I want to tell you is that is caching. Caching. It is not catching. Huh? Cache, you have to say cache memory. It is cache memory. Cache nahi hai. That pronunciation is cache. Cache memory. So it is a temporary memory where frequently needed things are kept. इसको हम pool कह सकते हैं. तो whatever is again needed is kept in that pool. So in case of autoboxing and unboxing, or in short, in case of wrapper object, let it be autoboxing, unboxing, वो concept terminology रहने दो. In case of wrapper objects, what Java does is it keeps the objects on the pool till some range. Getting? Instead of creating two separate objects for the same value. Getting? पहले सुनो मैं क्या कह रहा हूं. अगर आपने एक wrapper object बनाया integer A एंड इसको 100 दिया और मैंने और एक रैपर ऑब्जेक्ट बनाया B और उसको 200 दिया. सॉरी 100, वेरी सॉरी, 200 नहीं 100, सेम वैल्यू दिया. गेटिंग? तो नाउ यू नो दैट just in today's session in the beginning we have discussed here the concept of autoboxing is going to apply. Yes or no? यहाँ 100 किससे रिप्लेस होने वाला है? integer dot value of 100. Here also integer dot value of and 100 is passed. ये तो पता है आपको कि जावा इधर ऑटोमेटिक वो कंपाइलर इस जगह पे वो मेथड डाल देगा integer dot value of, फिर रन टाइम वो इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें 100 स्टोर होगा
और फिर वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ए में आएगा। गेटिंग? बट यहां ना स्मार्टनेस अप्लाई किया है। व्हाट दे से, विद इन द स्कोप, स्कोप जो भी आपका स्कोप है, within the scope, if there are two wrapper objects with same value, unnecessary, it is not wasting the memory. Both will refer to the same object. Getting? Means क्या होता है देखो, अब ये लाइन तो उससे रिप्लेस हो चुकी है ना, integer dot value of 100, एंड सेम दूसरी लाइन भी उसी से रिप्लेस हो गई, सेम लाइन। तो होता क्या है, जब ये इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 100 कॉल होगा रन टाइम, इट विल टेक 100, तो वो पूल में देखेगा कि ऑलरेडी कोई एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है क्या जिसकी वैल्यू 100 है। पूल पे इट विल चेक ऑन द पूल if there is a object with the value 100. Understanding? If not, then it will create that object. Pool means it's a part of heap. ऐसे याद रखो, heap का ही एक सेक्शन है जहां frequently needed objects रखे हैं and duplicates नहीं होंगे। Getting? तो pool is a part of your heap memory where frequently needed objects are kept. तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें वैल्यू 100 स्टोर्ड, उसका रेफरेंस रिटर्न होगा जो ए में आ जाएगा। ठीक है? बट फॉर द सेकेंड केस, इंटीजर बी इक्वल टू 100, हियर ऑल्सो कंपाइलर इज गोइंग टू रिप्लेस, ऑटोबॉक्सिंग अप्लाई होने ही वाला है ना, तो यहां कंपाइलर अगेन वही लाइन रिप्लेस किया रहेगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 100। बट ये वैल्यू ऑफ इतना स्मार्ट बना हुआ है कि वो पहले कैश में जाके देखता है, कैश मीन्स टेम्पररी मेमोरी में, पूल में देखता है, ऑब्जेक्ट पूल, यू कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट पूल, दैट ऑलरेडी डू वी हैव अ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर क्लास विथ वैल्यू 100, यस, तो इट विल नॉट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, यही रेफरेंस बी को देगा, न्यू कॉपी नहीं क्रिएट करेगा, क्लोन नहीं, यही रेफरेंस इसको दे देगा, और बी में भी वही रेफरेंस आएगा जो ए में, एंड दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? हाँ, बट आप कहोगे कौन से रेंज तक वो कैश में रखता है, तो हर एक का रेंज है वो बताता हूं, वो रेंज आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं टू वीएम, आप वर्चुअल मशीन को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यू कैन इंस्ट्रक्ट टू द वर्चुअल मशीन दैट प्लीज चेंज दिस रेंज। गेटिंग? आई विल शो यू दैट, बट प्रैक्टिकली मैं जब इक्लिप्स में दिखाऊंगा तो आई विल शो यू हाउ यू कैन चेंज दैट सेटिंग ऑफ दैट रेंज। बाय डिफॉल्ट उसका रेंज होता है -128 टू +127, इतने वैल्यू, इतने रेंज में कोई रहेगा तो वो पूल पे रखेगा, बट इस रेंज के बाहर गया तो फिर वो सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर वो पूल में नहीं मेंटेन, क्योंकि पूल के भी तो लिमिटेशंस होता है ना। कह रहे हैं जैसे अगर ये 100 है उसकी जगह पे अगर 200 होता एंड 200 होता, तो पहली बार 200 आया, ऑब्जेक्ट बन गया, बट सेकेंड टाइम जो है उसके लिए पूल में नहीं चेक करता, बिकॉज इट इज नॉट विद इन द रेंज, वो 200 का अलग नया ऑब्जेक्ट बनेगा, भले दोनों में 200 ही है, but it is going to allocate separate memory for that 200, this 200, and both will refer to their own copy, A अपनी कॉपी को, B अपनी कॉपी को। गेटिंग? तो ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। गेटिंग? तो देखो कहना क्या है, जावा कैशेस wrapper object, caches means you got, it keeps it in the pool, the objects which we need again and again, it keeps it in one object pool, and when we need the same object it will not create again, it will take from the pool and give you, pool में से ही वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तुम्हें देगा, एक पूरा नया कॉपी नहीं बनाएगा। गेटिंग? सो जावा कैशेस रैपर ऑब्जेक्ट फॉर सर्टेन वैल्यू रेंजेस, हर एक का नहीं बन सकता है, एक फिक्स रेंज तक अगर रहेगा तो कैश में से लेगा, रेंज के बाहर चला गया तो न्यू कॉपी बनाएगा, भले वैल्यू सेम है। कह रहे देखो, दिस लीड्स टू अ क्रिटिकल पिटफॉल, दिस इज सॉर्ट ऑफ लूप होल जैसे, मीन्स हमें कुछ पिटफॉल मीन्स हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए बट कुछ अलग ही हो रहा है, तो क्यों? क्योंकि ये कैश कंसेप्ट है। कह रहे सो दिस लीड्स टू अ क्रिटिकल पिटफॉल विथ डबल इक्वल टू, कंपैरिजन के समय गड़बड़ होता है।
करेक्ट। जैसे कि अगर आपने इंटीजर a इक्वल टू 100 रखा और एक इंटीजर b इक्वल टू 100 रखा, तो एज दिस 100 इज विद इन द रेंज, 100 is within the range, both will not get a separate copy, दोनों की अलग कॉपी नहीं बनेगी। ए भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और बी भी वही, दोनों का रेफरेंस सेम है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करने जाते हो डबल इक्वल टू से, अभी अनबॉक्सिंग नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों साइड रेफरेंस है। एक प्रिमिटिव एक रेफरेंस रहता तो अनबॉक्सिंग होगा, ऐसे एक प्रिमिटिव और एक ऑब्जेक्ट और एक प्रिमिटिव, तो अनबॉक्सिंग होगा। एक्स पे अनबॉक्सिंग होगा, फिर अंदर की प्रिमिटिव निकल के आएगा, फिर प्रिमिटिव। बट रिमेंबर व्हेन बोथ आर ऑब्जेक्ट्स एंड यू आर डूइंग डबल इक्वल टू, ए इज अ ऑब्जेक्ट, बी इज अ ऑब्जेक्ट, रैपर का ऑब्जेक्ट है ना वो, ये 100 असाइन नहीं हुआ है इधर, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 100 मीन्स इसका एक हिप पे ऑब्जेक्ट बना है और फिर उसका रेफरेंस। सो व्हेन यू ट्राई टू कंपेयर टू रेफरेंस वेरिएबल, it is not comparing the value in that object, it is comparing the reference. Getting or no? A एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, और हिप पे 100 के लिए एक ऑब्जेक्ट बन गया है और उसका रेफरेंस आ गया। बट जब सेकेंड टाइम अपने इंटीजर b इक्वल टू 100 लिखा है, तो 100 की जगह पे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 100, वो वैल्यू ऑफ इतना स्मार्ट है कि पूल में देखता है कि 100 के लिए एक ऑब्जेक्ट है क्या है, तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, वही रेफरेंस दे रहा है जो किस में आ जाएगा, बी में, द सेम रेफरेंस एंड both are referring to same place. And when you are trying to compare them with equality operator, please remember when you are comparing two objects, one primitive one wrapper नहीं है, एक प्रिमिटिव एक रैपर रहता था तो वो रैपर पे अनबॉक्सिंग लगता था, बट दोनों ऑब्जेक्ट है तो जावा कहता है जब दोनों ऑब्जेक्ट है तो मैं रेफरेंस कंपेयर करूंगा। इट इज नॉट गोइंग टू कंपेयर द वैल्यू इन द ऑब्जेक्ट, गाइस, what it is going to check, the reference, and are the reference same, दोनों में रेफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए ट्रू आता है, आंसर ट्रू आ जाएगा। देखो सी है, बट यू विल गेट अनएक्सपेक्टेड अगर हमने 200 किया ए में एंड बी में भी 200 डाल दिया, ठीक है, एंड अभी अगर मैं a डबल इक्वल टू b कंपेयर करता हूं तो अभी फॉल्स आता है, तो अभी हमें वियर्ड लगता है अरे 200 इक्वल टू 200 ट्रू आना चाहिए था, फॉल्स दे रहा है। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी कहा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए जब दो ऑब्जेक्ट्स है तो उन ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं कंपेयर होती है, सिर्फ रेफरेंस कंपेयर होता है गाइस। It is not going to check the value in that object, it is just going to compare the reference. And as the value is 200, is it beyond the range? Yes. तो पहले a के लिए इंटीजर a इक्वल टू 200 लिखा था, बराबर, तो 200 लाइन किससे रिप्लेस हो चुकी है कंपाइलर ने, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 200, तो हिप पे एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें 200 एनकैप्सुलेट करेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ए में रख दिया, एंड जब सेकेंड टाइम इंटीजर बी इक्वल टू 200 लिखा है, उस 200 की जगह पे भी इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 200, हिप पे जाके देखेगा ही नहीं कि ऑल मेरे पूल में जाके देखेगा नहीं, इट विल नॉट चेक इन द पूल बिकॉज दिस वैल्यू इज आउट ऑफ द रेंज, देयरफॉर फॉर द सेम वैल्यू 200 इट विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, स्टोर दैट 200 and that new object reference come in B. And now when you try to compare this both A with B, already I have told you equality operator doesn't check the value in that object, it checks only the reference. So इसमें और इसमें क्या रेफरेंस है, डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट, इसलिए फॉल्स आता है। बट हमें लगता है कि अरे 200 इक्वल टू 200 ट्रू आना चाहिए था, फॉल्स कैसे आया,
तो बेसिकली उसने 200 कंपेयर ही नहीं किया है, उसने सिर्फ रेफरेंस कंपेयर किया है गाइस. It has just compared reference, and as the reference is different, though both the objects contain 200 only, but the reference is different, you get answer false. Because equality on two wrapper object doesn't do unboxing, it simply compares the reference. And in this situation, why two different object got created? Because 200 is not within the range. वो range के बाहर गया, इसलिए अलग उसको पूल में नहीं रखा, उसने सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाया, लिमिट के बाहर है. एग्रीड? ठीक है. तो इन दिस केस इफ यू डोंट वांट टू कंपेयर द रेफरेंस, रादर द वैल्यू इन दैट ऑब्जेक्ट कंपेयर करना है, आपको ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई वैल्यू कंपेयर करनी रहेगी, देन प्लीज यूज इक्वल्स मेथड. एक्चुअली ये इक्वल्स ऑब्जेक्ट क्लास से आती है, बट वो हर रैपर ने भी ओवरराइड की है. ये इक्वल्स मेथड है रैपर क्लास में. रैपर क्लास इज हैविंग, एंड यू हैव टू पास वन इंटीजर ऑब्जेक्ट एंड अनदर इंटीजर ऑब्जेक्ट इज इनवोकिंग इट, ए डॉट इक्वल्स. तो ए एक रैपर ऑब्जेक्ट है और बी दूसरा. अभी इक्वल्स क्या करेगा, इनके रेफरेंस नहीं कंपेयर, वैल्यू एट रेफरेंस चेक करेगा. ए जिधर रेफर कर रहा है 200, बी जिधर रेफर कर रहा है 200, आर दे सेम? यस, इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सो ऐसे सिचुएशन में डबल इक्वल टू यूज करने की जगह पे क्या यूज करना चाहिए? इक्वल्स मेथड. गेटिंग? सी, I'll show you here. Integer equal to 200, b equal to 200, a double equal to b. Getting? Is it giving false? This itself proves when you're comparing two objects of wrapper class using equality, ideally it is not checking the value where they are referring. They are just comparing the references. And in this situation, they are two different objects. But for 100, as it is in a range, it didn't created a new object. पूल में से ही b के लिए भी दे दिया. a के लिए एक ऑब्जेक्ट बना था, वो पूल में है, तो b को भी वो पूल में से ही ऑब्जेक्ट दिया, एंड दोनों वो एक ही पूल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, एंड दोनों एक ही को है, तो रेफरेंस सेम है, इसलिए डबल इक्वल टू ट्रू है. ऐसे सिचुएशन में अगर आपने इक्वल्स से कंपेयर किया, now it gives true because equals is not checking the reference, it is checking the value in that object. A जिधर रेफर कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, B जिधर रेफर कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, तो दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू 200 है, इसलिए ट्रू है. तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. क्विकली वी विल गो थ्रू दिस. ठीक है. तो जावा कैशेस रैपर ऑब्जेक्ट फॉर सर्टन वैल्यू रेंजेस टू सेव मेमोरी, क्योंकि इसका कहना है कि क्यों अननेसेसरी उसी 100 के लिए अलग अलग कॉपी बनाते जाए, दोनों जन एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करें. Correct? So this leads to some unexpected thing in the comparison. See, the cache ranges, what are there? That I'll tell you. For Boolean, the range is true and false always. For byte, it is minus 128 to plus 127 always. But for short, int, long, actually short का range होता है 32,002, but caching के लिए इतना ही range दिया है. में शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, इनका कैश रेंज इतना है. भले वो डेटा टाइप का रेंज बिगर है, इंटीजर डेटा टाइप का रेंज प्लस माइनस 2 बिलियन है आई गेस, लॉन्ग का प्लस और माइनस अराउंड 9 क्वांटिलियंस वगैरह है. तो कैश में इतना नहीं, तो उन्होंने कैश में कितने तक ही रख सकेगा, -128 टू +1. यू कैन चेंज दिस रेंज, ओके, एंड कैरेक्टर के लिए 0 to 127, एंड फ्लोट एंड डबल कभी कैश नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि वो कभी एक्यूरेट नहीं रहता ना वैल्यू. तो दो ऑब्जेक्ट में अगर 3.5 तो भी स्टिल इट इज ट्रीटेड नॉट एक्यूरेट. 3.5 और दूसरा 3.50000 समवेयर 1, तो भी दे आर नॉट एग्जैक्ट सेम. एज दे आर नॉट एग्जैक्ट सेम, व्हाट वी से, इट इज नेवर कैश. तो ये सब रूल्स याद रखो. एंड अगर किसी का कैश रेंज चेंज करना है, ओके, तो देयर इज अ प्रोविजन, आई विल टेल यू. बट ये एग्जांपल देखो, जैसे ए में 127, बी में 127, तो नाउ आर दे गोइंग टू गेट क्रिएटेड एज अ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और दे विल बी द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द पूल?
प्लीज याद रखना 127 ए को नहीं जाएगा, वी आर एट द एंड ऑफ द टॉपिक। गेटिंग? ऑटो बॉक्सिंग होने वाला है। इधर इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें 127 स्टोर होगा वो ऑब्जेक्ट में, और उसका रेफरेंस ए में आएगा। एंड ए इज अ ऑब्जेक्ट ऑन द स्टैक एंड दैट ऑब्जेक्ट इज ऑन द हिप। ठीक है? बट वेन यू डू बी इक्वल टू 127, तो यहां भी इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ होने वाला है। तो वो वैल्यू ऑफ मेथड इतना स्मार्ट है कि वो पूल में जाके चेक करता है कि ये वैल्यू का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है क्या। यस, तो उसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तुम्हें देगा। तो बी को नया ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये पुराने ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस। देयरफॉर बी विल आल्सो रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, एंड देयरफॉर व्हेन यू आर कंपेयरिंग ए विद बी, getting, it is comparing the reference, and the reference is same, therefore it comes out to be true. Same cached object. Because double equal to, guys, on two objects, don't check the value in that object, they just check the reference. तो दोनों के अंदर रेफरेंस सेम है, इसलिए ट्रू है। एंड क्यों रेफरेंस सेम है? क्योंकि दोनों एक ही पूल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पूल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, बट सेकेंड सिचुएशन में देखो, 128 असाइन, इट इज बियॉन्ड द लिमिट, तो ऑटोबॉक्सिंग तो होने वाला है, राइट है नो? पहले केस के लिए हिप पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, 128 स्टोर होगा, फिर वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया। ये सब काम कौन कर रहा है? इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। बट वो लाइन इधर रिप्लेस कर दी है कंपाइलर ने। कंपाइलर ने ये 128 की जगह पे क्या डाल दिया है? इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 128। एंड फिर वो वैल्यू ऑफ क्या करता है? इट एलोकेट्स मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट, encapsulates that value in that object and return the reference of that object. वो सब काम वो स्टैटिक मेथड कर देता है। गेटिंग? बट इस केस में देखो d इक्वल टू 128, अभी 128 कैश रेंज के बाहर है, इसलिए नया ऑब्जेक्ट बनेगा, नए ऑब्जेक्ट में भी 128 स्टोर्ड। ठीक है? एंड उसका रेफरेंस किस में आ गया? d में। And now when you try to compare C with D, the reference is different. Therefore, you get false. C double equal to D. थोड़ा डाउट आता है ना, C double equal to D, 128 क्यों false? तो बेसिकली 128 कंपेयर ही नहीं हुआ गाइज, रेफरेंस कंपेयर हुआ है। एंड रेफरेंस दोनों में क्या है? अलग है, दोनों अपने अपने ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, इसलिए फॉल्स। सो ऐसे सिचुएशन में जब रेफरेंस नहीं कंपेयर करना है, वैल्यू इन दैट ऑब्जेक्ट, तो इक्वल्स यूज करो। इक्वल्स इज अ मेथड ऑफ एवरी रैपर ऑब्जेक्ट, रैपर क्लास। हर रैपर क्लास में ये मेथड है, एक रैपर ऑब्जेक्ट पास करना है, एक इन्वोकर है। तो अंदर इक्वल्स क्या करेगा? सी जिधर रेफर कर रहा है वो वैल्यू लेगा, डी जिधर रेफर कर रहा है वो वैल्यू, और ये वैल्यूज कंपेयर हो गए। गेटिंग? एंड वैल्यूज सेम है, इसलिए ट्रू आता है। गेटिंग? तो आई होप दिस इट फॉल you should know it. So rule है, whenever you are comparing two wrapper object, please don't use double equal, instead use equals. Okay? And this static method which I told, integer value, integer dot value of, ये जो static method है, जो हमने पास्ट में एक स्लाइड पे मैंने दिखाया भी था, हर एक के अपने अपने, इंटीजर का अपना वैल्यू ऑफ, फ्लोट का अपना, सबका वैल्यू ऑफ स्टैटिक मेथड है। एंड इंस्टेंस मेथड अलग अलग, इंटीजर का इंट वैल्यू, फ्लोट का फ्लोट वैल्यू, डबल का डबल वैल्यू, वो इंस्टेंस मेथड है जो अनबॉक्सिंग के लगता है, और ये बॉक्सिंग के लिए। तो इधर ये मेथड कॉल होने वाली है ना 128 की जगह पे, 127 की जगह पे। तो ये मेथड क्या करेगा? इंटरनली चेक करेगा कि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कैश पे है क्या, एंड अगर कैश पे रहेगा तो उसी का रेफरेंस लाके देगा, एंड नहीं है तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो यूजेस एन इंटरनल इंटीजर कैश। ओके? एंड जो लिमिट है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो बाय गिविंग सम फ्लैग्स टू योर वीएम। ओके? ये फ्लैग्स दे सकते हो, देखो। ओके? दिस यू कैन डू इट फ्रॉम इक्लिप्स ऑल्सो। इक्लिप्स के अंदर भी आप रन कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो वहां वीएम कॉन्फ़िगरेशन में ये सेट कर सकते हैं। आई विल शो यू दैट, डोंट वरी। ठीक है? तो वहां आप लोगों ने अगर साइज चेंज किया तो आपके कैश का लिमिट चेंज होता है। Getting? Okay? So I hope it is clear to you.
right? Then few things are remaining that we will complete. The null unboxing problem, ठीक है? ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया टर्नरी ऑपरेटर में. ओके, मींस अगर आपके पास एक रैपर ऑब्जेक्ट है जिसमें नल है और उसको यूज किया है जहां अनबॉक्सिंग होने वाला है, तो इट इज गोइंग टू थ्रो अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन. गेटिंग? देखो अभी जैसे एक इंटीजर रैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, बट उसको प्रिमिटिव ही दिया नहीं. प्रिमिटिव देते थे तो वो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता था, फिर उसका रेफरेंस यहां हमने नल असाइन किया, विच इज नॉट रॉन्ग बिकॉज इट्स अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को नल असाइन करना अलाउड है. लेटर अगर आप किसी कैलकुलेशन में इंटीजर x इक्वल टू a प्लस 20 कर रहे हो, which is not at all wrong again. Can we do arithmetic on primitive and wrapper object? Yes. डायरेक्टली a प्लस 20 होने ही नहीं वाला है, आपको पता है. यहां इंटरनली क्या कॉल होगा? अनबॉक्सिंग होगा, तो a डॉट क्या कॉल होने वाला है? इंट वैल्यू. बट ऐसे सिचुएशन में जब वो इंट वैल्यू कॉल करने जाएगा तो वो कॉल ही नहीं होगा रन टाइम. इट इज गोइंग टू थ्रो अ एरर, क्योंकि a में नल रेफरेंस है. तो नल रेफरेंस है तो कैन यू इन्वोक अ मेथड? नो, इट विल रेज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन एट रन टाइम. सो यू शुड नो दिस प्रॉब्लम्स. ओके, फिर उसके लिए कुछ दिए ऑप्शनल क्लासेस एंड ऑल कंसेप्ट. सो अनबॉक्सिंग अ नल रैपर ऑलवेज थ्रोज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन. क्यों? क्योंकि नल के थ्रू डॉट इंट वैल्यू कैसे कॉल होगा ना, उसमें रेफरेंस ही नहीं है, तो हाउ कैन यू कॉल अ इंस्टेंस मेथड इंट वैल्यू? गेटिंग? सी सिचुएशंस है, बहुत जगह पे है. ठीक है, जैसे फ्यू एग्जांपल कि आपने एक पहले मैप क्रिएट किया. एक मैप है, मैप इज अ की कॉमा वैल्यू पेयर, की वैल्यू. तो मैप का कॉन्सेप्ट क्या? मैप भी एक कलेक्शन है, बट उस कलेक्शन में हर चीज की एंड वैल्यू फॉर्म में रखा है. की एंड वैल्यू फॉर्म. तो एक मैप बना है, अज्यूम करो उसमें की एंड वैल्यू रखा है, और आप वो मैप में से ये की मिसिंग की वैल्यू निकालने जा रहे हो. गेट क्या करता है? की लेता है और उसकी वैल्यू लाके देगा. व्हाट डज गेट डू? टेक्स द की एंड गिव्स यू द वैल्यू ऑफ दैट की. बट ये मैप में ये की ही नहीं है, मिसिंग नाम की ही नहीं है. तो उसकी वैल्यू आएगी क्या? नहीं. तो वैल्यू नल आएगी. और वो नल क्या टाइप का है? इंटीजर. माने इंटीजर का वैल्यू है ना. वैल्यू क्या टाइप का है? इंटीजर. तो वो इंटरनली डॉट इंट वैल्यू कॉल करने जाता है, बट वो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने रिटर्न ही क्या किया है? नल. क्योंकि ये की नहीं है, तो इट थ्रोज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सेम ये टर्नरी का भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कंडीशन लिखा है, कंडीशन ट्रू है तो a x को जाएगा, अदरवाइज 0 जाएगा. बट a कभी x को नहीं जाएगा क्योंकि a एक रैपर ऑब्जेक्ट है. तो कंपाइलर इस जगह पे a डॉट इंट वैल्यू कॉल करने वाला है, बट a डॉट इंट वैल्यू कॉल ही नहीं हो सकती है क्योंकि a में नल है. रन टाइम नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो. गेटिंग? सेम केस यहां देखो, ये मेथड के अंदर से आप नल रिटर्न कर रहे हैं. इधर रिटर्न टाइप इंटीजर है बट नल रिटर्न विच इज अलाउड, and that you are trying to store in a primitive. Getting? तो यहां भी एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट आने वाला है ये कह रहा है कि गेट स्कोर क्या रिटर्न करने वाला है? ऑब्जेक्ट. तो यहां कंपाइलर क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट डॉट इंट वैल्यू, ये इंट को देगा, बट वो इंट वैल्यू इन्वोक ही नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि आया ही है नल रेफरेंस. गेटिंग? ओके, सो दैट पार्ट इज ऑल्सो clear to you, right? Then when you have a overloaded method, I hope the concept of overloaded means what? It's a feature of polymorphism. It is a concept of polymorphism. One name and many forms means method का नाम एक ही है बट उसके कोड्स अलग अलग है. बट फिर कैसे रिकॉग्नाइज होगा कौन सा कोड? तो फ्रॉम द सिग्नेचर. सिग्नेचर मीन्स पैरामीटर. गेटिंग? जैसे एक फू है और एक फू है और एक फू है, तो मीन्स हमने 3 फूज लिखे, मीन्स सबका नाम सेम है बट सबका
एक्शंस अलग है, लॉजिक अलग है. दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म. करेक्ट. बट पॉलीमॉर्फिज्म के भी दो टाइप होता है. एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम. रन टाइम मीन्स इनहेरिटेंस में आएगा, एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेथड ओवरलोडिंग. Method overloading means writing many methods with the same name but different definitions and different signatures. Signature means क्या? Number of argument, type of argument, order of argument. इसमें जो arguments हम पास करेंगे उसका काउंट तो भी अलग होना चाहिए सबका. किस बेसिस पे ये डिफरेंशिएट हो गए? ये तीनों डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे हो गए? तीनों का नाम सेम है, लॉजिक्स अलग है. सिग्नेचर, ये सिग्नेचर मीन्स 3 थिंग्स: नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट. मीन्स एक तो तीनों का काउंट अलग होना चाहिए ये आर्ग्यूमेंट्स का, बट अगर काउंट सेम है तो डेटा टाइप अलग होना चाहिए. बट अगर डेटा टाइप भी सेम है तो ऑर्डर तो भी अलग चाहिए. जैसे देखो, इसको भी 3 जा रहा है, इसको भी 3 जा रहा है, इसको भी 3 जा रहा है, इसको भी 2 इंट 1 फ्लोट जा रहा है, इसको भी 2 इंट 1 फ्लोट, इसको भी 2 इंट 1 फ्लोट. तो फिर अभी कैसे तय होगा? तो ऑर्डर तो भी अलग चाहिए. लाइक इसका इंट इंट फ्लोट, इसको फ्लोट इंट इंट किया है, या इंट फ्लोट इंट. तो एटलीस्ट ऑर्डर तो भी अलग है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे. मीन्स कैसे डिफरेंशिएट हो गए? तो मेथड ओवरलोडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम, बिकॉज कौन सी मेथड बाइंड करनी है कॉल की जगह पे. अभी आप एक मेथड कॉल करोगे, लाइक यू आर कॉलिंग foo एंड यू आर पासिंग 10, 20, 4.5 f. सो ये फैमिली में से कौन सी वाली मेथड इस जगह पे बाइंड होनी चाहिए? ये कॉल, दिस इज कॉल एंड दिस इज डेफिनेशन. सो विच मेथड शुड बाइंड टू दैट कॉल is decided at compile time only. On what basis? This signature check होगा, not return type. Return type overloading decide नहीं करता है. क्या डिसाइड करता है? सिग्नेचर. एंड सिग्नेचर किस पे? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट. अब देखो इधर 3 है, तीनों को भी 3 है, अगेन प्रॉब्लम आ गया. तीनों का 3 आर्ग्यूमेंट है और इधर भी 3. अभी कौन? सेकेंड डेटा टाइप चेक होगा. इसमें 2 इंट 1 फ्लोट है, इधर भी सबको 2 है, तो फिर ऑर्डर चेक होगा. तो ऑर्डर में पहला इंट, दूसरा इंट, तीसरा फ्लोट, तो कौन सा वाला मैच हो रहा है? फर्स्ट. तो ये वाला इस जगह पे बाइंड होगा. मीन्स ये कॉल को ये डेफिनेशन बाइंड. सो रन टाइम इस जगह पे इन तीनों में से कौन सा कॉल होगा? द फर्स्ट वन, बिकॉज वो बाइंड हो गया अकॉर्डिंग टू द सिग्नेचर. गेटिंग? अभी कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग समझ में. अभी ओवरलोडिंग में ऑटोबॉक्सिंग, गेटिंग कैसे सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करता हूं क्विकली. सो ऑटोबॉक्सिंग इंटरैक्ट्स विथ मेथड ओवरलोडिंग इन अ स्पेसिफिक प्रायोरिटी. वो एक ऑर्डर डिसाइड करता है कि कब ऑटोबॉक्सिंग होगा. गेटिंग? तो पहले वो एग्जैक्ट चेकिंग ही करेगा, फिर प्रमोशन करेगा, फिर वेरिएबल है क्या देखेगा, एंड फिर पहले ऑटोबॉक्सिंग, एंड वो भी नहीं हो रहा है तो फिर वेरिएबल कॉन्सेप्ट. गेटिंग? तो आई विल टेल यू हाउ इट इज. सो ऑटोबॉक्सिंग इंटरैक्ट्स विथ मेथड ओवरलोडिंग इन वन पर्टिकुलर ऑर्डर. द ऑर्डर इज लाइक दैट. फर्स्ट, एग्जैक्ट मैच, मीन्स एग्जैक्ट प्रिमिटिव मैच. मीन्स यहां से इंट पास किया है, फ्लोट, तो फैमिली में देखेगा एग्जैक्ट इंट फ्लोट वाला है क्या नहीं. यहां से इंट फ्लोट भेजा है, तो फैमिली में भी देखेगा कि ऐसा एक मेथड है क्या जो इंट फ्लोट वाला है क्या नहीं. मिल गया तो ठीक है, पहला ही चेक हो गया, मैं एग्जैक्ट मैच हो गया, एग्जैक्ट प्रिमिटिव मैच. नो, तो वाइडनिंग हो रहा है क्या देखेगा, क्योंकि जावा में ऑटोमेटिक वाइडनिंग अलाउड है. देखो, आप लोगों ने इधर से पास किया है इंट, ओके, दूसरा पास किया है इंट, तीसरा पास किया है फ्लोट, बट फैमिली में उसको इंट एंड डबल मिल रहा है, चल जाएगा. क्यों? क्योंकि फ्लोट कैन बी वाइडन टू डबल. फ्लोट को डबल को वाइडन कर सकता है.
तो while passing you have passed int float, but actually in the definition we don't have exact one. int float वाला exact नहीं है, तो एटलीस्ट देखेगा कि वाइडनिंग होकर चल रहा है क्या, तो फ्लोट कैन बी वाइडन टू डबल, तो है डबल वाला मैचिंग मिल जा रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा। वो भी नहीं तो फिर ऑटो बॉक्सिंग कंसेप्ट देखेगा, गेटिंग, लाइक यहां से हमने पास किया है इंटीजर, इंटीजर एंड फ्लोट, बट वहां इंट प्रिमिटिव है, इंट प्रिमिटिव है, बट फ्लोट रैपर ऑब्जेक्ट है। थर्ड इज अ फ्लोट रैपर, देन ऑल्सो इट इज ओके। तो इंट इंट एग्जैक्ट मैच, इंट इंट एग्जैक्ट मैच, बट यहां हमने प्रिमिटिव फ्लोट, वहां प्रिमिटिव फ्लोट वाला नहीं मिल रहा है, बट रैपर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, चलेगा। पहले तो एग्जैक्ट मैच किया, फिर देखा कि एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट प्रमोशन वाला मैचिंग मिल रहा है क्या, वो भी नहीं मिला, तो फिर रैपर का चेक करेगा, गेटिंग। तो चलेगा ना, प्रिमिटिव फ्लोट कैन बी गिवन टू फ्लोट रैपर, ऑटो बॉक्सिंग हो जाता है ना, तो ऑटो बॉक्सिंग। एंड अगर ऑटो बॉक्सिंग भी पॉसिबल नहीं तो इट अज्यूम्स इट इज अ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल आर्ग कंसेप्ट भी होता है जावा में, गेटिंग। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स मींस पासिंग एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मींस उसको कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करने का प्रोविजन है। यू हैव टू राइट इट विद डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट से लिखते हैं, ठीक है, एक्स, एंड यहां जो भी है इंट, तो इट सेज इसमें कितने इंटीजर्स आने वाले हैं, एनी नंबर, मींस कॉल करते समय मैंने 5 पास किए, 2 पास किए, 100 चलता है, सब जन ये एक ही आर्ग्यूमेंट में एज अ अरे के फॉर्म में आ जाता है, दे कम इन द फॉर्म ऑफ अरे, मींस यहां से मैं चाहिए उतने पास करूंगा, बट दे ऑल गेट पैक्ड इनटू वन अरे, एंड वो अरे आ जाता है इधर, कह रहे उसको हम वेरिएबल आर्क कहते हैं। तो वी विल लर्न अ वेरिएबल आर्क कंसेप्ट टॉपिक अगेन सेपरेटली, ओके। सो इस ऑर्डर में वो कंसेप्ट होगा। तो देखो अपने एग्जाम्पल में, इन आवर एग्जाम्पल, ये 3 मेथड्स है, तीनों का नाम सेम है, रिटर्न टाइप पे कभी मेथड ओवरलोडिंग डिसाइड नहीं होता है, तो दिस इज मेथड ओवरलोडिंग, द नेम इज सेम, सिग्नेचर डिफरेंट, डेफिनेशन डिफरेंट, अंदर उसका डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है, ओके। नाउ one is taking a integer primitive, one integer wrapper object and one long, ओके। अब मैंने लिखा है इंटीजर 5, तो यहां 5 प्रिमिटिव है, 5 एज अ इंटीजर, तो इट इज गेटिंग एग्जैक्ट मैच विथ इंटीजर, अंडरस्टैंडिंग गाइज, एग्जैक्ट मैच विंस, एग्जैक्ट मैच विंस, ओके। बट अगर आपने लिखा है रैपर इंटीजर 5, मीन्स आप कास्ट करने जा रहे हैं 5 को इंटीजर रैपर, तो उस समय ये वाला विन होगा, क्यों, क्योंकि यहां ये मैच हो रहा है, यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू ऑब्जेक्ट, गेटिंग। बट अज्यूम करो ये केस में ये वाला रहता ही नहीं था, ये है ही नहीं, एंड मैंने मेथड 5 पास किया प्रिमिटिव, तो एग्जैक्ट चेक किया, नहीं, फिर वाइडनिंग हो रहा है क्या, हो रहा है लॉन्ग को, तो ये वाला हो जाता था, बट वाइडनिंग वाला भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा, ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है क्या, तो यस 5 का ऑटो बॉक्सिंग हो जाता है ना इंटीजर में, तो ये कॉल हो जाता था, बट अकॉर्डिंगली यहां नहीं हुआ, गेटिंग। एंड व्हेन यू डू दिस थिंग, अभी ये वाला एग्जांपल देखो, एक है जिसमें लॉन्ग है और एक ये रैपर इंटीजर है, एक लॉन्ग और एक रैपर, कॉल करते समय क्या पास किया है, 5 प्रिमिटिव इंटीजर, तो विल इट फर्स्ट चेक whether there is a exact match, 5 is an integer, तो do we have a int match, no, int टाइप वाला है क्या, जैसे इस फैमिली में था, तो यहां नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, तो वाइडनिंग वाला हो रहा है क्या, यस 5 कैन बी वाइडन टू लॉन्ग, तो ये मैच रैपर में नहीं जाएगा, देखो वाइडनिंग बीट्स ऑटो बॉक्सिंग, क्योंकि पहले वाइडनिंग होता है एंड फिर ऑटो बॉक्सिंग को प्रेफरेंस मिलता है, अंडरस्टैंडिंग गाइज, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, यू गॉट द कंसेप्ट। एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ तो वाइडनिंग देखेगा, वाइडनिंग भी मैच नहीं हुआ तो क्या चेक करेगा,
एग्जैक्ट मैच वन केस, एग्जैक्ट मैच नहीं तो वाइडनिंग हो रहा है क्या देखेगा, वाइडनिंग भी नहीं तो ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है क्या देखेगा, ऑटो बॉक्सिंग भी नहीं तो अज्यूम करेगा इट इज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट. ठीक है. Okay, I'll show you the demonstration. See, we create one method foo with integer primitive. ठीक है. And inside that I'm just writing system.out.println. Just I'm writing int. Okay. And one more foo I'm making, which is integer wrapper. And inside that I'm writing system.out.println integer. Okay, this way 2 are. Now I'm calling foo and I'm passing 5. Will it take exact one, guys? Exact वाला चला जाएगा. ठीक है. Actually यहाँ ये बनाते समय this one, here we were supposed to pass this one. Okay, तो मैं अलग ही मेथड लेता हूँ bar and यहाँ मैं देता हूँ long. ठीक है. अंदर लेता हूँ long. और एक बार लेता हूँ बार, बट जिसको रैपर इंटीजर पास करता हूँ. एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसमें इंटीजर. ओके. स्पेलिंग रॉन्ग. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटीजर. अभी हमारे पास 2 बार है. ठीक है. 2 bar methods are there. One takes a primitive integer and another, primitive long, and another takes wrapper integer. Now if I call bar with value 5, अभी 5 तो int है तो exact देखेगा तो नहीं है, एक तो long वाला है और एक integer wrapper है तो exact नहीं. तो second step डायरेक्ट ऑटो बॉक्सिंग नहीं, सेकेंड क्या देखेगा, प्रमोशन हो रहा है क्या. तो यस, 5 इज गेटिंग प्रमोटेड. 5 जो है वो किसको प्रमोट हो रहा है, लॉन्ग. तो इट विल कॉल द लॉन्ग वन. इज इट कॉलिंग लॉन्ग वन? इट इज नॉट टेकिंग दैट रैपर वन. तो ऑटो बॉक्सिंग will come later and promotion will come first. Widening beats auto boxing. But अगर widening भी नहीं होता था, right or no, this is int and यहाँ अगर char रहता था, char, तो int cannot be promoted to char, then wrapper हो जाएगा. Understanding? देखो अगर मैं इधर एक बार की जगह पे कोई और मेथड बनाता हूँ, कार बनाता हूँ, कार, right? And I'm passing a character to it. And in printing, I'm writing car. ठीक है? सर, car लिखना था तुम्हें. CHAR. Okay? And और एक कार बनाता हूँ जिसमें अपना इंटीजर रैपर पास करता हूं. passing integer. Okay, now in this case when we call car with value 5, first it will check the exact match. 5 int है तो int है क्या कार फैमिली में? नहीं है. फिर प्रमोट हो सकता है क्या 5? अभी 5 किसको प्रमोट हो सकता है, टू इंट और टू लॉन्ग? वो भी नहीं है. तो फिर वो रैप ऑटो बॉक्सिंग होगा. 5 इंटीजर है तो वो प्रमोट किसको हो सकता है? इंट कैन बी प्रमोटेड टू लॉन्ग, गेटिंग, बट वी डोंट हैव. कैर तो डिमोट हो गया ना, कैर तो इंटीजर के पहले का हो गया. तो अभी इस केस में ऑटो बॉक्सिंग होगा. तो 5 इज गेटिंग ऑटो बॉक्स टू इंटीजर रैपर एंड देन इंटीजर रैपर वाली मेथड कॉल हो गई. गेटिंग? तो कंसेप्ट समझ में आया. एंड वन लास्ट थिंग, लाइक व्हेन you should generally avoid this autoboxing mechanism and go to the standard primitive only. यानी standard primitive में गए तो ज्यादा बेटर है. क्यों?
because many times when autoboxing is coming, lot of objects are getting created on the hip, and continuously garbage collector gets a burden. गार्बेज कलेक्टर पे बर्डन आ जाता है. एग्जाम्पल दिखाता हूं, तुम्हें समझ में आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो दैट इन केस ऑफ ऑटोबॉक्सिंग, the primitive is getting converted into object, and that object is stored on the hip, which has real performance cost. Means pros and cons दोनों है. देखो, जैसे अगर ये कोड लिखा है मैंने, this is the code, and in this the sum variable I have not kept as primitive, I have kept as a wrapper object. देखो, integer wrapper object का ये sum है. So sum is a variable of wrapper object, and then you are writing a for loop which is going for 0 to 100 time, and you are adding that I. ये I को आप continuous add कर रहे हैं, that is 0 plus 1 plus 2 plus, and that addition you are continuously storing in sum. But here the sum is a object, guys. तो continuously unboxing हो रहा है, I add हो रहा है, और वापस boxing हो रहा है. याद है ना, थोड़ी देर पहले ही बताया था that when unboxing boxing, here when we are writing sum plus equal to I, guys, internally it is happening like this: integer dot value of, ठीक है, then sum dot int value, क्योंकि sum अभी ऑब्जेक्ट है ना इस केस में, sum is a object, तो वो sum में जो रखी हुई वैल्यू है वो पहले आएगी बाहर, जो प्रिमिटिव वैल्यू है. तो अनबॉक्सिंग हो गया, उसमें एक आई ऐड करेगा विच इज प्रिमिटिव. आई इज प्रिमिटिव, तो ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई प्रिमिटिव निकलेगी, उसमें आई ऐड, ये एडिशन वापस इंट वैल को जाएगा और नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो नया ऑब्जेक्ट वापस किस में आएगा, सम. तो सम में कंटिन्यूअस न्यू रेफरेंस आते जा रहे हैं कि नहीं, यस और नो. सम प्रीवियसली एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, अभी क्या होगा, इसके अंदर की प्रिमिटिव निकलेगी, उसमें आई ऐड होगा, वापस एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, अभी इसका रेफरेंस ये गायब. लूप के अंदर है ना, तो कंटिन्यूअसली ये होते जा रहा है. वापस अगली बार इसके अंदर की वैल्यू निकलेगी, उसमें उस समय का आई ऐड होगा, अगेन न्यू आंसर, ये नए ऑब्जेक्ट, ये इसमें आ गया और पुराना गायब. तो ऐसे कंटिन्यूअसली वो ऑब्जेक्ट्स बनते जा रहे हैं एंड उसके रेफरेंस लॉस हो रहा है. तो ये सब गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो रहा है. तो लॉट बर्डन टू द गार्बेज कलेक्टर. गेटिंग अनबॉक्सिंग द सम, एडिंग आई टू इट एंड रीबॉक्सिंग. तो एवरी इटरेशन न्यू इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, हर बार एक नया इंटीजर ऑब्जेक्ट बनता है, उसका रेफरेंस सम में आता है. उसके जगह पे अगर ये प्रिमिटिव को प्रिमिटिव ही रखते थे तो कंसेप्ट ऑफ अनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, रीबॉक्सिंग नहीं होगा ना. एंड मोर एवर ये 1000 टाइम है, सोचो 1000 टाइम ऑब्जेक्ट्स बनेंगे हिप पे, और हर बार एक पुराना ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, एक नया बन रहा है, पुराना गार्बेज कलेक्ट, नया बन रहा है, पुराना गार्बेज. तो ऐसे सिचुएशन में बी वाइज वेदर टू यूज ऑटोबॉक्सिंग और बी रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिमिटिव ओनली. ऐसे सिचुएशन में प्रिमिटिव को ही टिके रहो, be binded to the primitive, don't go for wrapper. Getting frequent boxing in the loop generates many short-lived object. Short-lived object only I showed ना, पहले सम एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, उसमें से वैल्यू निकली, उसमें आई ऐड हुआ, वापस एक नया ऑब्जेक्ट बना, वो नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सम एंड पुराना लॉस. अगली बार अगेन सेम, हर इटरेशन पे एक ऑब्जेक्ट बनता है और वो गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि रेफरेंस लॉस हो रहा है, रेफरेंस लॉस 1000 टाइम. इंक्रीजिंग गार्बेज कलेक्टर फ्रीक्वेंसी एंड पॉज टाइम. कंटिन्यूअसली गार्बेज कलेक्टर को वो मेमोरी फ्री करना है, तो इट इज अ बर्डन टू द गार्बेज कलेक्टर. एग्रीड? एंड देयरफॉर यू शुड बी वेरी वाइज व्हेन टू यूज ऑटोबॉक्सिंग एंड व्हेन नॉट. तो जनरली अगर आप कलेक्शंस में डील कर रहे हैं, कलेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, और उस कलेक्शन में आपको प्रिमिटिव स्टोर करने, तो वो नहीं देता है ना, क्योंकि कलेक्शन में से ऑब्जेक्ट ही रखना अलाउड है. तब फिर आप ऑटोबॉक्सिंग यूज करो, प्रिमिटिव को उसके रैपर ऑब्जेक्ट में बनाओ और फिर कलेक्शन में डाल दो. एंड जब कलेक्शन में से ऑब्जेक्ट निकलेंगे तो वो तो रैपर ऑब्जेक्ट रहेंगे.
तो उधर अनबॉक्सिंग होगा। ठीक है, आई होप इट इज clear to you. So this was all about the concept autoboxing and unboxing. ठीक है, तो we discussed about what is autoboxing, what is unboxing. Then we discussed about what was happening traditionally before Java 5. Java 5 introduced that concept, but before Java 5, what was happening? Then we saw different situations where autoboxing is happening, different situations where unboxing is happening. Correct? Then we saw how these wrapper objects are cached. They are kept in the cache memory, but they have a limit. Till that limit, they are in the cache. Otherwise, they are separately created. Getting? And think about the performance. So generally, when you are in a loop, then generally don't do arithmetic on the wrapper object. Instead, do it on primitive only. Okay. So that's all about this autoboxing and unboxing. Okay, in the next session, some new topic.